Hello kids, welcome back. So we are going to read computers today, and in that I have already explained you two chapters we have done, chapter 1 and chapter 2, that we have already completed. Now today we will start chapter 3. Chapter 3 I have also started in the last class. I have done some of the explanation. Now today we will complete some more explanation. Okay, so let us start. Hello kids, welcome back to your computer classes. So up to now we have completed two chapters, and in our last chapter we have started software. In our last chapter we have started a third chapter, that is software. So yesterday I have explained you that what is a software. A software is that component of a computer that we cannot touch. It gives instruction to the computer. So basically software is a set of instruction. So what is a software? Software is a set of instructions that tells the computer that how to do a particular task. This much we have discussed yesterday, and after that we have read about types of software, that is application software and system software. And in that I have told you that application software is that software that performs a specific function. Application software are those software that performs a specific function, right? And I have given you several examples also, like Google Pay and Paytm and Swiggy, Zomato. What are these? These are softwares. These are application software. आप घर पे बोलते हो ना कि भाई क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या ऐप डाउनलोड करना. आप बोलते हो ना ऐसा कि भाई क्या करना है, एप्लीकेशन मुझे डाउनलोड करना है, गूगल प्ले से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. सो दीज आर द एप्लीकेशन जिससे हम कुछ स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, है ना. MS पेंट का एग्जाम्पल था आपकी बुक में. MS पेंट में हम क्या कर सकते हैं, MS पेंट से वी कैन ड्रॉ पिक्चर. बट देखो अब MS पेंट से हम पिक्चर ही ड्रॉ कर सकते हैं. MS पेंट पे हम डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट कर सकते. MS पेंट पे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. MS पेंट पर हम और क्या नहीं कर सकते, MS पेंट से हम कॉल नहीं कर सकते. हम कुछ स्पेसिफिक काम ही कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक काम ही, स्पेसिफिक टास्क ही कर सकते हैं. In that we have read about Microsoft Word, Microsoft Excel, MS Paint and Logo. इतना हमने पढ़ा था कल. Now next is system software. Next software that we have to read is system software. System software भी समझाया था कि भाई system software क्या होता है. It acts as a manager. It acts as a manager of the computer system. System software कैसे एक्ट करता है, मैनेजर की तरह एक्ट करता है. ओके, नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है एंड उनको इंस्ट्रक्ट करता है व्हाट टू डू. तो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर is a type of software that control and manage the overall activities of computer system. एक कंप्यूटर सिस्टम की overall activity, जो भी चीजें कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है. उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है. ओके, नाउ सो देयरफॉर वी कॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर अ मैनेजर. लाइक in any organization a manager perform variety of function. In any organization a manager perform variety of function. He coordinates among all the employees and वो इंस्ट्रक्शन देता है, भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो. सिमिलरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो यही काम करते हैं. ठीक है. अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट for the application software. Why system software is very important for the application software? Because they instruct application software. What they do? They instruct application software and they help them to run.
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं भाई, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में, उनको काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नाउ अच्छा, उसी में हमने पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और भाई उसमें हमने क्या पढ़ा था, इन दैट वी हैव रेड दैट, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ब्रिज, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर which acts as a bridge between the user and the computer system. It is the first software which has to be installed on the computer. तो जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड होना चाहिए वो कंप्यूटर में, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज का काम करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक गैप को फिल करता है। ठीक है। नाउ अ कंप्यूटर इज यूजलेस विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर इज कंप्लीटली यूजलेस विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कार विच हैज पेट्रोल engine, this example I have given you yesterday also, like if you have a car which has petrol engine, steering wheels etc, but it doesn't have a driver, then will it be able to move? Will the car be able to move? क्या कार मूव कर पाएगी? No, car won't be able to move. So if there is no driver to drive the car cannot move on its own. So likewise, if car cannot move on its own, so सारे parts होते हुए भी, if there is no operating system on computer, then computer cannot work. The driver acts as an operating system for a car. So an operating system is a must to work with computer. So operating system is must to work with computer. कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मस्ट होता है। ठीक है, मतलब वो होना ही चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हमारा कंप्यूटर वर्क कर पाएगा, है ना। नाउ हियर अपडेट योर नॉलेज इज गिवन। यूजर आर द पर्सन हु कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर एंड यूज द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट। हाँ भाई, तो यहाँ पे यूजर के बारे में समझाया है। तो भाई यूजर कौन होता है, User is the person who communicates with the computer and uses the information generated by computer. तो क्या करता है यूजर कंप्यूटर को यूज, इन सिंपल वर्ड, यूजर वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है, यूजर वर्ड से हमें समझ में आ रहा है वो व्यक्ति जो कि कंप्यूटर का क्या करे, वो व्यक्ति जो कि कंप्यूटर का यूज करे। और जब वो कंप्यूटर का यूज करे तो भाई अब आगे क्या होगा, जब वो कंप्यूटर का यूज करेगा तो कंप्यूटर का यूज करे और जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर दे रहा है उसको क्या करे, उस कंप्यूटर को क्या करे, वो अपने काम में लाए। सो अभी राइट नाउ कंप्यूटर के यूज में कौन है, मैं और आप, हम दोनों क्या है, कंप्यूटर के यूजर है। वाई? Because I am making a video with the help of a computer and you are watching a video with the help of a computer. So हम दोनों क्या, we both are user. I am making a video and you are watching a video. So we both are user for the computer. कंप्यूटर के लिए हम दोनों क्या है, यूजर है। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मस्ट फॉर द कंप्यूटर। उसके बिना तो कंप्यूटर भाई साहब रह ही नहीं पाएंगे, वो खत्म ही हो जाएंगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज तो मस्ट। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो भाई अब ये पढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, फंक्शन मतलब क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, पहला है कंट्रोलिंग हार्डवेयर। फर्स्ट इज कंट्रोलिंग हार्डवेयर। कंट्रोलिंग हार्डवेयर।
Okay. According to your book, an operating system controls all part of a computer system and enables them to work properly. Operating system क्या करता है? It controls all part of a computer. कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को, whether it is mouse और कीबोर्ड और सिस्टम यूनिट और मॉनिटर, ये सब को ऑपरेट करता है और सबको उनके काम बताता है कि तुम ये करो, तुम ये करो. ठीक है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम controls all part of a computer system and enable them to work properly. उन्हें अच्छे से काम करने की सलाह देता है. देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे सारे जो कंपोनेंट हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, सारी चीजें, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो जाती हैं. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें क्या करता है? उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ये करो, आप वो करो, इस तरह करके. गॉट इट? Next is running software. Next is running software. है ना बेटा? रनिंग. अब देखो, कंट्रोलिंग हार्डवेयर के बाद अगली चीज में वो कहाँ मदद करता है? सॉफ्टवेयर को रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है. व्हाई? एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज MS वर्ड, MS पेंट, लोगो, गेम्स एक्सेट्रा. देखो ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस नहीं चल सकते. एप्लीकेशंस को चलाने के लिए जरूरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जितने भी हमारे एप्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड, लोगो, गेम्स, पेंट, वो सबको कंट्रोल करना और उनको चलाना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन क्या है? रनिंग सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को रन करना, सॉफ्टवेयर को चलाना. ठीक है. नेक्स्ट इज बूटिंग. नेक्स्ट इज बूटिंग. ओके. सो booting means one of the major function of an operating system is booting. It is the process of starting and restarting the computer. It is the process of starting and restarting the computer. कंप्यूटर को स्टार्ट करना और फिर से देखो अच्छा ये देखो, कभी कभी हम नहीं करते, अभी हम अक्सर होता होगा कि क्या होता है कि हमारी मीटिंग अचानक स्टॉप हो जाती है, या हमारा कोई एप्लीकेशन अचानक से काम करना बंद कर देता है, या हमारा फोन हैंग करने लगता है. हमारा फोन जब हैंग करने लगता है तो हम क्या करते हैं? उसको स्विच ऑफ कर देते हैं और एक बार स्विच ऑफ करके थोड़ी देर छोड़ के फिर से ऑन करते हैं, है ना. तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्या होती है? सॉर्ट आउट हो जाती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग वही चीज है. बूटिंग मीन्स व्हाट? बूटिंग में क्या होता है? कंप्यूटर में अगर कहीं एरर आ गया या कुछ कंप्यूटर किन्हीं कारण से लैपटॉप या कंप्यूटर हैंग करने लगे, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑप्शन देता है कि भाई इसको बूट करो. बूट करो मीन्स या तो इसको स्टार्ट करो, मतलब ऑफ करके स्टार्ट करो, या तो रीस्टार्ट करो. आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप स्टार्ट पे जाएंगे ना, पावर बटन पे, तो वहां पे आपको 3 या 4 ऑप्शंस मिलते हैं. एक आता है स्लीप, एक होता है रीस्टार्ट, एक होता है शट डाउन, है ना. तो रीस्टार्ट करने से क्या होता है? कंप्यूटर एक बार फिर से पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है. और कहीं पे अगर कोई बग है, अगर कहीं पे कोई ग्लिचेस है या प्रॉब्लम है, तो वो मैक्सिमम चांस है कि वो सॉर्ट आउट हो जाता है. तो एक बार और ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम और क्या कर रहा है? हमारे कंप्यूटर के स्मूथ वर्किंग में, कंप्यूटर के स्मूथ चलने में वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है. नाउ बूटिंग कितने टाइप की होती है? बूटिंग 2 टाइप्स की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग. तो भाई बूटिंग कितने टाइप की होती है? कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग.
है ना, दो टाइप की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। नाउ when a computer is switched on, when a computer is switched on, this process of booting is called cold booting। कंप्यूटर ऑफ कर दिया, अब फिर से जब हम उसको ऑन करते हैं तो उस बूटिंग को क्या कहते हैं हम, कोल्ड बूटिंग। उस बूटिंग को हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग, जब हम कंप्यूटर एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं, सो वी कॉल दैट कोल्ड बूटिंग। नाउ द प्रोसेस टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर, वार्म बूटिंग में क्या होता है, रीस्टार्ट। इसमें क्या होता है, बूटिंग टू टाइप की हुई, कोल्ड एंड वार्म। तो वार्म बूटिंग में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर ऑन रहता है, द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन इज कॉल्ड अ वार्म बूटिंग। कंप्यूटर ऑन है हमारा, बट सपोज हमारा विंडोज रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया या पेंट रिस्पॉन्स अचानक से करना बंद कर दिया कि भाई पेंट नहीं वर्क कर रहा है, सो व्हाट हैपन, तो उसके लिए व्हाट वी डू, उसके लिए वी रीस्टार्ट अवर कंप्यूटर। ये वर्ड आपने अपने घर में भैया दीदी या मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा कि भाई कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने से जो ग्लिचेस होती हैं, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो क्या हो जाती है, वो सॉर्ट आउट हो जाती है ना। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो कंप्यूटर की बूटिंग कितने तरह से हो सकती है, कंप्यूटर की बूटिंग टू टाइप से हो सकती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मीन्स व्हाट, कोल्ड बूटिंग मीन्स जब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑफ था, पहले से कंप्यूटर क्या है, ऑफ है, हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर को ऑन किया, हमने कंप्यूटर को दोबारा से ऑन किया, तो वो क्या हुई, वो हुई कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग मीन्स कंप्यूटर ऑन था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कुछ ग्लिचेस आ रही हैं, फिर हमने क्या किया, हमने उसको ऑफ किया, ऑफ नहीं किया, रीस्टार्ट किया। जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। उसको व्हाट वी कॉल्ड इट वार्म बूटिंग। ठीक है, नाउ ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द फंक्शंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला फंक्शन है दैट इज कंट्रोलिंग हार्डवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो फंक्शन है वो होता है कंट्रोलिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर को क्या करना, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ये सबसे पहला फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से और ये उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं हाउ टू वर्क। नेक्स्ट इज रनिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज रनिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से रन नहीं कर सकता। कोई भी सॉफ्टवेयर, वॉट एवर सॉफ्टवेयर इट इज, दैट कैनॉट वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर में, है ना जी। नाउ नेक्स्ट इज बूटिंग। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को ऑन ऑफ या रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को ऑन ऑफ या रीस्टार्ट करना। ठीक है, नाउ कंप्यूटर को ऑन ऑफ या रीस्टार्ट करना। बूटिंग टू टाइप्स की हो गई, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या हुआ, जब हम एक ऑन कंप्यूटर को, जब हम एक ऑलरेडी ऑन कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। ठीक है, जब हम एक ऑलरेडी ऑफ कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो दैट इज कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग में व्हाट वी डू, इन वार्म बूटिंग वी रीस्टार्ट अवर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, ये सारी चीजें हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
Types of operating system. Okay. Now, popularly used operating system are Windows, Macintosh and Linux. तो देखो थ्री टाइप्स के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, वी यूज दैम। तो उनमें से क्या है, कॉमन क्या है उनमें से, विंडोज, मैकिन्टॉश एंड लाइनेक्स। फर्स्ट वन इज विंडोज, नेक्स्ट इज विंडोज के बाद व्हाट, मैक ओएस। चलो मैक ओएस या मैकिन्टॉश भी इसको हम बोलते हैं। मैक ओएस, ठीक है। नाउ थर्ड इज लाइनेक्स। अच्छा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, मैक ओएस या लाइनेक्स। नाउ विंडोज क्या है, विंडोज आर द मोस्ट कॉमन, विंडोज आर द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज मोस्ट एफिशिएंट ऑल्सो। ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। इनफैक्ट आपके लैपटॉप में, ज्यादातर लोगों के लैपटॉप में, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में विंडोज होते हैं। विंडोज 10, विंडोज 9, ये ऐसा आपने अपने घरों में सुना होगा। विंडोज 9, विंडोज 7, विंडोज 10, ये इस तरह की बातें आपने अपने घर में सुनी होंगी, है ना। सो विंडोज इज द मोस्ट एफिशिएंट GUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब विंडोज को इस तरह बनाया गया है कि वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम आसानी से, हम सब उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज को हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। फाइन, विंडोज क्या है, विंडोज में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सबसे अच्छा क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट GUI। इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। इट इज वेरी इजी टू यूज। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। नाउ व्हाट वर्क डज विंडोज डू। सो विंडोज को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को बनाया। नाउ विंडोज इज द मोस्ट एफिशिएंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस based on operating system from Microsoft. It controls the overall activity of your computer. ये हमारे कंप्यूटर की पूरी एक्टिविटी, ओवरऑल एक्टिविटी ये क्या करता है, गवर्न करता है। नाउ नेक्स्ट इज मैक ओएस। मैक ओएस इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। देखो नॉर्मल जैसे HP, लेनोवो, ये वाले जो लैपटॉप्स होते हैं ना, HP, लेनोवो हो गए, इन लैपटॉप्स में विंडोज यूज होती है। इन लैपटॉप्स में क्या यूज होती है, इन लैपटॉप्स में हम विंडोज यूज करते हैं। बट एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं, एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं, एप्पल के लैपटॉप में मैक ओएस वर्क करता है, उसमें विंडोज वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट इज लिनक्स। ओके, नो वेट। सो मैक ओएस इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन फॉर देयर मैकिन्टोश लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मैकिन्टोश लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के लिए इनको क्या किया है, बनाए गए। जो भी कंप्यूटर, एप्पल के कंप्यूटर होते हैं ना, आपने सुना होगा, तो उसमें मैक ओएस वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री। इट इज फ्री
on the internet. Linux is an open source code. ये क्या है? Open source है. Open source code means it is very easy to use. Open source code operating system, it can be copied and modified free of cost. अब इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो, विंडोज और मैकओएस को, इसको हम अपने से कॉपी या अपने से इसको हम एडिट नहीं कर सकते, बट लाइनक्स जो होता है ये होता है ओपन सोर्स. दिस इज ओपन सोर्स होता है. ओपन सोर्स मतलब, ओपन सोर्स मीन दिस कैन बी इजिली कॉपीड एंड इसको हम आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. नाउ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हुए? विंडोज, मैकओएस एंड लिनक्स. विंडोज मीन्स GUI. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसका क्या होता है? बहुत ही एफिशिएंट होता है. दिस इज वेरी इजी टू यूज. GUI इसका क्या होता है? बहुत ही आसान होता है. इट इज वेरी इजी टू यूज. नेक्स्ट इज मैकओएस. एप्पल इनकॉर्पोरेशन का मैकओएस. ठीक है. नाउ लाइनक्स मीन्स, लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स है. एप्पल इनकॉर्पोरेशन का मैकओएस है और लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स है मीन्स इसको एडिट करना और इसको एडिट करना और इसको कॉपी करना इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. नाउ ऑन दैट पेज ओनली इट इज गिवन अबाउट अपडेट योर नॉलेज. सो update your knowledge. Open source refers to those software which must be available to anybody free of cost. Anybody can edit or modify its source code. It must be freely distributed. Open source वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री होते हैं. इंटरनेट पे क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? These softwares are completely free. Open source refers to those software which must be available to anybody free of cost. अब इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कोई भी एनीवन कैन एडिट और मॉडिफाई इट सोर्स कोड. इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है. ओके. नाउ हियर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर एंड नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव read in this chapter. So first point, a set of instruction that tells the computer how to perform its task is called a computer software. We have read this. What is software? A software is a computer. A software is an instruction for the computer that tells computer how to perform a particular task. Okay. Next is software. I know that two main type of software are system software and application software. So broadly, softwares are divided into two broad categories. That is system software and एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. टू ब्रॉड कैटेगरीज में बढ़ जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज, आई नो दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर. आई नो दैट अ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये मैंने अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज, I know that application software include programs that perform specific tasks for the user. ये भी बताया कि एप्लीकेशन क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के में कुछ स्पेसिफिक टास्क करते हैं. जैसे MS Paint है तो MS Paint की हेल्प से वी कैन ओनली डू पेंटिंग. I know that MS Paint, Logo, MS Excel, MS Word are examples of application software. ये सारे क्या हैं? These all are the application software because they all perform some specific task. ये सारे क्या करते हैं? कुछ specific task ही perform करते हैं. Okay. I know that Windows, Mac OS and Linux are operating system software. So Windows, Mac OS and Linux क्या है? Operating system है. ये भी हमने पढ़ा. Now kids, here we have completed our chapter 3 also. Okay. So we will meet in next class to discuss some more things. Okay. Bye bye.